Okay, so this is CFA level 2, class number 1 of financial statement analysis, FSA. Financial statement analysis का first class. If you recall, CFA level 1 में FSA was the biggest portion in terms of volume. The same is true in CFA level 2. FSA is the biggest portion, though not the most difficult portion. I will rank FSA as easy stuff, but voluminous stuff. From an exam point of view, FSA से एग्जाम में 12 to 15% आने का स्कोप है. 12 to 15% of the exam shall be on FSA. FSA is directly related to equity. जो equity वाला पार्ट है, FSA उससे directly related है. From your real life point of view, the 6 learning modules that we have in FSA are extremely important in real life when you sit down to analyze companies. जिस depth से ये 6 topics लिखा हुआ है, you will not find that depth elsewhere. If you remember, level 1 में when I used to talk about OCI, other comprehensive income, which bypassed the PL account, directly hit the equity. So what was the code word we used? Those of you who are aware, CFA level 1 में for those items which bypass the income statement and are directly adjusted in equity, okay, OCI, other comprehensive income में, what is the code word we used to use? Yes, puffer, है ना? P for pension, U for unrealized gain or loss on available for sale securities, याद आ रहा है? F for foreign currency translation adjustment, E for effective hedges, and R था revaluation से लेके. तो बेसिकली CFA लेवल 2 का जो करिकुलम है उसमें जो चैप्टर्स हैं वो अराउंड अबाउट पफर ही है. फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट. तो इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स में वो जो पफर का यू है ना, PU, ओके, वो यू काम आएगा कि व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनी, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द अनरियलाइज्ड गेन और लॉस. मतलब आपने इन्वेस्ट किया, उसका भाव बढ़ गया है, आपने बेचा नहीं है, तो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस उसका क्या करेंगे. ठीक है, तो ऑब्वियसली इट्स मच बिगर देन दैट, बट देन गिविंग अ हिंट. For the first learning module in FSA is inter-corporate investment. A invests in company B का bonds या A invests in company B का equity stock. A invests in company B का convertible bonds. A invests in company B का callable bond, puttable bond, floating rate bond. Okay, so in that case, how will the accounting be done in the books of A? Investor के point of view से accounting discussed है. A is investing in B का securities. How will the accounting be done in the books of A? And as an analyst, when I am looking at A का books, the PL account, the balance sheet, the cash flow statement, तो मैं analytical best approach क्या लगाऊंगा? Because A का तो एक अलग धंधा है ना, A का एक अलग business है. A ये investment किया है B में. Is it a strategic investment or is it not a strategic investment? तो accordingly A का जो core operations है और ये जो investments है उसको अलग कैसे करूंगा? How will I evaluate A का performance as an analyst? Because we are not accountants. तो we will rely upon कि what does IFRS US GAAP have to say in this regard? कैसे accounting होता है? And given what US GAAP IFRS does, okay, where are the judgments involved कि management ने खेला होगा? And how do we as an analyst apply the best approach to find out the true performance of A, the true financial position of A. The true performance of A, I'm talking about the PL account, profitability, and the true financial position of A. Okay, balance sheet में जो A का net worth है, उसका true reality कैसे पता लगाएं? That's the first chapter, inter-corporate investment. Inter-corporate investment. Okay, inter-corporate. I think nobody can forget about chapter में क्या था, inter-corporate. A, B में लगा रहा है पैसा, A के बुक्स पे कैसे अकाउंटिंग होगा. अकाउंटिंग करना नहीं है, केवल जानना है जिससे अपने एज एन एनालिस्ट उसको इवैल्यूएट कर सके. करेक्ट है, दैट्स इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट. सेकेंड चैप्टर इज एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन. एम्प्लॉइज को क्या देते हैं? वेजेस, सैलरी, बोनस देते हैं. उसके अलावा एम्प्लॉइज को क्या देते हैं? पेंशन देते हैं. उसके अलावा एम्प्लॉइज को क्या देते हैं? शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन देते हैं. इन सब का अकाउंटिंग कैसे होता है एंड एज एन एनालिस्ट इसको अपने कैसे एनालाइज करेंगे, क्या डिस्क्लोजर को देखेंगे. ठीक है, तो कहां पे बायस इन्वॉल्व है, कहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है. दैट इज सेकेंड चैप्टर रिलेटिंग टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन. ओके, जो थर्ड चैप्टर है दैट इज मल्टीनेशनल ऑपरेशंस. मल्टीनेशनल ऑपरेशंस, यूएस कंपनी, उसका सब्सिडरी जापान में है, इंडिया में है.
तो इन दैट केस येन में और रूपी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहा है वो कैसे ट्रांसलेट होगा इनटू यूएस डॉलर, उसके करेंसी में कैसे ट्रांसलेट होगा, उसमें गेन और लॉस का क्या करेंगे, ठीक है। सो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मल्टीनेशनल ऑपरेशंस, तो व्हेन यू पिक अप अ एप्पल और अ मेटा इन कंपनीज का, obviously you can't understand their financial statement because they have so much of multinational operations. उनका 75% of the operations या revenue are derived from outside US. So how do you look at them? How do you evaluate them? These are real questions. ठीक है, very important chapter multinational operations. 3 chapter हो गया, तो one was your intercorporate, second chapter हो गया employee compensation, third chapter हो गया अपना multinational operations. The fourth chapter gets into beautiful chapter analysis of financial institutions. कि सर अगर एक बैंक का पीएल देखेंगे, बैंक का पीएल इनकम स्टेटमेंट, तो उसमें तो सेल्स नहीं दिखेगा, उसमें इंटरेस्ट अर्नड दिखेगा, उसमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिखेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखेगा, इंटरेस्ट अर्नड माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम, उसके अलावा अदर इनकम होगा, प्रोविजंस होगा, कैसे अपने बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी लिक्विडिटी कैपिटल एडिक्वेसी बैंक्स का क्या क्या देखा जाता है. वंडरफुल चैप्टर बिकॉज व्हेन यू लुक एट योर फर्स्ट जॉब एंड इफ यू इंप्रेस अपॉन द ऑडियंस कि मेरे को बैंकिंग का देखना आता है, यू आर इन. अगर आपको प्रैक्टिकली बैंकिंग का देखना आता है, एनालिसिस करना आता है, केपीआईज आता है, यू आर इन, द जॉब इज योर्स. आता नहीं है लोगों को, नहीं आता है, क्लियर कट. सर जो लोग सीए करते हैं उन लोग का तो अकाउंटिंग फॉर बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, वहीं तो दिक्कत है. वो लोग अकाउंटिंग करने में ही खो जाते हैं, तो एनालिसिस करें कैसे. ठीक है. सेम होल्ड्स गुड फॉर इंश्योरेंस कंपनीज कि इंश्योरेंस कंपनीज में कैसे अपने देखते हैं क्लेम्स, ओके, एंड एवरीथिंग कैसे देखते हैं. तो इंश्योरेंस कंपनी, व्हेन यू टॉक अबाउट बर्कशायर हैथवे, ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट बर्कशायर हैथवे, उसका सबसे मेन फायदा तो क्या है कि उसके पास इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है जिसका शॉर्ट टर्म होराइजन नहीं है, लॉन्ग टर्म होराइजन है. तो अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट कर पा रहा है इन मेनी कंपनीज विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन. दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ वॉरेन बफेट, ओके, बर्कशायर हैथवे का. इफ यू कंपेयर हिम टू अदर फंड मैनेजर्स आर सिटिंग ऑन फंड्स व्हिच कुड बी टेकन अवे एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ व्हाटएवर, बट बर्कशायर हैथवे का जो फंड्स है वो स्टेबल है, तो वो इन्वेस्ट कर पा रहा है विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन, टेक अ कॉन्शियस डिसीजन. तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स में कैसे करता है, अंडरराइट कैसे करता है और उसका इन्वेस्टमेंट इनकम कैसा होता है. ओके, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, वन ऑफ द प्योर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी. मैं अभी रिसेंटली एनालिस्ट टैग के फर्स्ट क्लास में बात किया था. ठीक है. तो इंश्योरेंस कंपनी को कैसे उठाते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट्स द फोर्थ चैप्टर. ब्यूटिफुल चैप्टर. एक चैप्टर, योर करियर डन, बिलीव मी, एटलीस्ट एट द पिकअप स्टेज. लास्ट 2 चैप्टर्स जनरल है. 5th चैप्टर इज अर्निंग्स क्वालिटी, थोड़ा बहुत डिस्कशन लेवल 1 में भी होता था, अर्निंग्स क्वालिटी. ठीक है. तो और लास्ट चैप्टर इज आज तक जो एफएसए सीखे हैं, लेवल 1 लेवल 2 अलविदा, बिकॉज लेवल 3 में एफएसए नहीं है. तो लास्ट टाइम पे जाके क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दैट यू हैव लर्नड इन एफएसए, इंटीग्रेशन ऑफ एफएसए टेक्निक्स, ऑल दैट यू हैव लर्नड इन लेवल 1, इन्वेंट्री से रिलेटेड, लॉन्ग लिव्ड एसेट से रिलेटेड, नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, ओके, एवरीथिंग यू डिड इन लेवल 1, everything you did in level 2, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेक्निक्स. दे आर 6 लर्निंग मॉड्यूल्स ऑन एफएसए. ओके, वंडरफुल स्टफ. ओके, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना वो इन 6 चैप्टर्स को एक एनालिस्ट के रूप से कर ले, फाड़ देगा, बिलीव मी. बट दे डोंट डू इट. दे आर बिजी इन डूइंग अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट. ओके, वहीं पे सारा सूता और जूस निकल जाता है. सो दोज ऑफ यू हु आर डूइंग सीए एंड ऑल्सो डूइंग सीएफए लेवल 2, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एस इन योर एफआर पेपर. अगर सीए फाइनल बाकी है और सीए अगर हो चुका है तो ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी ऑफ लुकिंग एट ऑल दिस फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस. ओके सर, क्या आप ये लिखा सकते हैं ये 6 चैप्टर कौन सा है? एकदम भी नहीं. ठीक है, 6 चैप्टर कौन सा है वो आप भी देख सकते हैं, मैं स्टुपिडिटी में जाऊंगा नहीं. ठीक है, कि 6 चैप्टर कौन सा है, यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक. करेक्ट. तो बताए क्यों, एक जोश देने के लिए. फर्स्ट क्लास है तो एक पता चलना चाहिए ना स्ट्रक्चर. अपना 11 आइटम सेट्स एएम सेशन में आएगा, 11 आइटम सेट्स पीएम सेशन में आएगा. आप लोग को पता होगा 11 आइटम सेट्स विल कम इन द एएम सेशन. ईच आइटम सेट में 4 क्वेश्चंस, तो टोटल 44 क्वेश्चंस इन द एएम सेशन, 44 क्वेश्चंस इन द पीएम सेशन. तो 11 आइटम सेट्स आने वाला है. उसमें से एक आइटम सेट एएम या पीएम का इस चैप्टर से आने का बहुत हाई चांस है. एक आइटम सेट एएम या पीएम में इस
चैप्टर से आने का हाई चांस है. इट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन पास एंड फेल. इट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन पास एंड फेल. एटलीस्ट आपका मेंटालिटी पढ़ते समय इसी चैप्टर से आने वाला है. दिस चैप्टर इज गोइंग टू डिसाइड वेदर आई क्लियर और नॉट क्लियर. दैट इज द टाइप ऑफ इंटेग्रिटी यू शुड हैव व्हेन यू सिट एंड अटैक दिस चैप्टर. एंड आई डोंट वांट एन अकाउंटिंग माइंडसेट. ठीक है, तो जिन्होंने कंसोलिडेशन का 250 सम्स किया है सीए फाइनल में, हमें नहीं चाहिए भाई. ठीक है, कंसोलिडेशन का 250 सम्स, हम इसको एक एज अ बिजनेस एनालिस्ट देखेंगे और उठाएंगे. ठीक है, तो so this was my initial submission. Any reaction from you all? First shot. This class I think is also live on YouTube. So YouTubers or YouTubers नहीं, YouTube audience, hi from my side. ठीक है, and those who are doing Ulearn app पे class, उनका तो मेरे को messages यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है, hi to everyone. मैं YouTube के audience का comments देख नहीं पा रहा हूँ, but I am looking at the comments from Nayan, Kashish, कुशाग्र, ठीक है, एंड ऑल अदर्स हु आर डूइंग इट ऑन द SSCI का ऐप. करेक्ट, ब्यूटिफुल. बोला जाता है एक टीचर का ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली टू टीच द स्टफ बट इज ऑल्सो टू जनरेट अ सॉर्ट ऑफ पैशन फॉर द चैप्टर, सो दैट एक अलग मॉलिक्यूल ओके बहे रादर देन केवल पास करना. एंड एट द सेम टाइम जिज्ञासा आए कि इसमें क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड टू डू इन द फर्स्ट 12 मिनट्स ऑफ माई क्लास. तो 12 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए. चलो लेट्स मूव अहेड. इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स. बिलीव मी, आई एम नॉट श्योर मैं डिक्टेट क्या करूंगा, बिकॉज डिक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पिकअप नहीं कर रहा हूं चैप्टर को. ठीक है, आई एम बेस्ड अपॉन राइट नाउ कि क्या मैं डिलीवर करूं जिससे समझ में आए कॉमन सेंसिकली. ठीक है ना. इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, व्हाट डिड आई से, अपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर या इन्वेस्टी? दिलशाद, शिवानी, करण, प्लीज बताइए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने चैप्टर कर रहे हैं, फर्म ए या फर्म बी? फर्म ए ने फर्म बी में इन्वेस्ट किया. वी आर डूइंग द चैप्टर फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म ए और फर्म बी? वेरी गुड, फर्म ए, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्लियर रहे. फर्म बी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, फर्म ए के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, फर्म ए के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर कर रहे हैं हम लोग. ठीक है ना. तो फर्म ए फर्म बी के डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है. करेक्ट. हमारा ज्यादा स्ट्रेस इक्विटी सिक्योरिटीज में है. माने 95% of the chapter is focusing on equity investment. 95%. 5% of the chapter is focusing on debt investments. Because usually when you make investment in the other company, you are able to exercise control or exercise influence via equity investment or debt investment. जब A B का बॉन्ड बाई करेगा या A B का शेयर्स बाई करेगा तो A B को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर पाएगा वाया इक्विटी और वाया डेट. अगर A B का डेट बाई करेगा, A B का इक्विटी बाई करेगा तो A B को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर पाएगा वाया इक्विटी और डेट. इक्विटी ना, देयरफॉर मेजर थ्रस्ट इक्विटी पे है. ठीक है, तो ऑल्दो शुरू में डेट का भी जिक्र होगा और क्या पता उसी से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में. तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है अपना इस चैप्टर में, उस इन्वेस्टमेंट को ग्रुप किया है 5 कैटेगरी में. अब सिंस मैं टर्मिनोलॉजी यूज करने वाला हूं, देयरफॉर आई हैव कम टू द स्क्रीन, बिकॉज स्क्रीन पे आना पड़ेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सम टर्मिनोलॉजी. इट विल बिकम अदरवाइज वेरी हैवी. एंड ऑब्वियसली मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है? मेरा टारगेट ऑडियंस वो है जो कभी भी ये चैप्टर किया नहीं है. ओके, स्टूडेंट्स बोलते जा रहे इट इज नॉट लाइव ऑन यूट्यूब, तो नो इश्यूज, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे स्टाफ ने तो यही बोला था कि यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, अब नहीं हो रहा है तो वो स्टाफ का एफिशिएंसी दिखाता है. अपने तो यहाँ पे फोकस करें, फॉरगेट अबाउट यूट्यूब. यूट्यूब पे चढ़ा देंगे क्लास होने के बाद. आइए देखते हैं. सो आई वाज सेइंग firm A invests in firm B, and this is of 5 types. Number 1, financial assets. Number 2, associates. Number 3, business combination. Number 4, joint venture. Number 5, special purpose entity or variable interest entity. These are the 5 types of investments. When A invests in firm B, the investment could be either investments in financial assets,
investments in associates, investments in business combination, investments in joint venture, investments in special purpose entity or variable interest entity. मैंने बहुत जन का फुल फॉर्म लिखा नहीं है, आई होप यूर ओके. FA फॉर फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स बाई किए यार, कोई लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट, उसको अपने एसोसिएट मान रहे अपना. इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन से फीलिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशन का आ रहा है. इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर एकदम ठीक से समझ में आ रहा है कि 2-3 पार्टीज मिलके ओके एक जॉइंट वेंचर फ्लोट किए. इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस एंटिटी और वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी, इससे एनरॉन का फीलिंग आ रहा है कि एनरॉन ने हंड्रेड्स ऑफ एसपीईज या वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी में इन्वेस्ट किया था जो बुक्स में अकाउंटेड नहीं था और पता ही नहीं चला लोगों को क्या वॉल्केनो पे खड़े हैं. Okay, people never knew that Enron is sitting on such volcano because the volcano was the special purpose entities or variable interest entities, and when the volcanoes exploded, Enron exploded. Okay, and then the accounting rules were changed. Okay, all the SOX related issues जो level 1 में नाम सुने थे वो Enron के बाद ही आया था. Are you okay with these names? Are you okay with these names? Yash Shaini, Varun Shukla, Nikita Dattani, Nikunj, विवेक मंगला, नमन पांडे. आर यू ओके विद दीज? नमन बोल रहा है सर ज्वाइंट वेंचर का बेस्ट एग्जांपल मारुति सुजुकी. ओके, एवरीबडी इज ओके, फाइन, ये फुल फॉर्म में कोई इशू नहीं है. अब बेसिकली जो फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट्स है ना, इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज नॉन स्ट्रैटेजिक. जो फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज नॉन स्ट्रैटेजिक. ठीक है. और जो बाकी सारा इन्वेस्टमेंट्स है दैट इज स्ट्रैटेजिक. जो फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज नॉन स्ट्रैटेजिक. ओके, उस पर कोई लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है अपने मन में. जो बाकी सारा इन्वेस्टमेंट्स है दैट इज स्ट्रैटेजिक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड डिस्टिंक्ट अंतर है बाकी सब में. तो फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट अलग टाइप का डिस्कशन है, बाकी सब में अलग टाइप का डिस्कशन है. ओके, बाकी सब में अलग टाइप का डिस्कशन है. ठीक है. तो अभी अपने इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स डिस्कस कर रहे हैं. सो इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स ये डिस्कस कर रहे हैं. सो दिस कुड बी इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी. Now argue करके we can also talk about no sir convertible bonds, ये सब भी हो सकते हैं. Frankly speaking ये सब देता नहीं है, bonds या equity ही बोलता है. बट आपके मन के satisfaction के लिए जब मैं verbally discuss करूँगा I will discuss the hybrid instruments also. Okay, just for the purpose of जिज्ञासा. But otherwise bonds and equity will do. ठीक है ना. तो investment in bonds, investment in equity. Investments in equity को मैं strategic नहीं बोल रहा हूँ. Therefore, investments in equity में the stake is less than 20%. 20% से कमती स्टेक है. 20% से कमती स्टेक है. You know which one is rule based and which one is principle based. याद है क्या आपको? CFA level 1 में which one is rule based and which one is principle based. Which one is rule based and which one is principle based. ये तो सबको याद होगा. कौशिक शाह, सुमित गौड़ा, दिव्यांश अग्रवाल. आपको पता है कि IFRS उसूल पे चलता है, प्रिंसिपल बेस्ड. US गैप रूल बेस्ड. ठीक है. तो ये 2020 जो है मोटा मोटी US गैप पकड़ेगा कि 20% से कम. IFRS ठीक है ले लेगा 20% से कम, बट वो कॉन्सेप्ट पे जाएगा. ध्यान देना. तो दे आर सेइंग दैट ये जो अपने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इक्विटी पे इन्वेस्टमेंट, दिस इज माइनॉरिटी पैसिव. ये वर्ड टेक्स्ट में यूज नहीं किया हुआ है, ये वर्ड टेक्स्ट में यूज नहीं किया हुआ है, बट मैं हमेशा यूज करता हूँ, मेरे को हेल्प करता है. और जाहिर है मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो बिकॉज ऑफ विच आई वुड लाइक दैट आप भी इस वर्ड को समझे. माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट है. यस सर, माइनॉरिटी है हम लोग का. 5% स्टेक है, 8% स्टेक है. और पैसिव है. पैसिव का मतलब हो गया कि वी आर नॉट exerting influence, no
significant no significant influence in the financial or operating activities of B. बी का जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, बी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, उस पे अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वेयर वी डू नॉट हैव a significant influence in the financial or operating activities of B. We will assume, if the problem is silent, that अगर 20% से कमती इन्वेस्टमेंट है, we will assume if the problem is silent that अगर 20% से कमती इन्वेस्टमेंट है तो that is minority passive. We will assume no influence. But the text says that 20% is not the determining factor. It is possible that A has a 12% investment in B, a 12% equity stake in B, but A is enjoying board seat in B. A is enjoying board seat in B. A का 12% investment in B है and A is enjoying board seat in B. Example, मेरे ख्याल से I'm not 100% sure, so you can't catch my caller or give me a message on क्या बोलते हैं टेलीग्राम. जो राकेश झुंझुनवाला फैमिली है, शो माई फेस ना, जो राकेश झुंझुनवाला फैमिली है, I think that has a small stake in Star Health Insurance. Please check करना. राकेश झुंझुनवाला फैमिली जो रेयर एंटरप्राइजेज है, उनका एक छोटा सा स्टेक है इन, छोटा सा मतलब 20% से कमती स्टेक है, छोटा नहीं है, 20% से कमती स्टेक है इन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस. तो अगर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में सपोज उनका स्टेक है 10% और 11%, तो अकॉर्डिंगली वो तो माइनॉरिटी पैसिव होना चाहिए. हाउएवर दे हैव अ बोर्ड सीट. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में उनका बोर्ड सीट है. इसका मतलब जो भी बोर्ड मीटिंग्स होता है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में, दे आर पार्टिसिपेंट टू इट, एंड इफ दे आर पार्टिसिपेंट टू इट, दे इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस. आर यू गेटिंग मी? दे इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस. ठीक है. और मेरे पास तो स्कोप नहीं है लेवल 2 पढ़ाते समय, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं करूंगा, पर जो भी पर्सन सुन रहा है वो फॉर एग्जाम्पल क्लास के बाद इंडियन और ग्लोबल एग्जाम्पल्स ले सकता है ना, वो डाल सकता है जीपीटी में, क्लॉड में, कि गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वेर इन द स्टेक इज लेस देन 20% बट देर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. इंडिया का कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स, ग्लोबल कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स दो, तो आप चेक कर सकते हैं. एवरीबडी सेइंग दैट सा आपने स्टेक गलत बोला, 17.2% इन्वेस्टमेंट है, सर्वेश पोद्दार एंड ऑल इज सेइंग. मैंने तो बोला मेरा फिगर्स रॉन्ग हो सकता है. ठीक है. 17.5 भी है तो भी 20% से कम है. ओके. 17.5% है तो भी 20% से कम है. अदर्स आर नाउ गिविंग एग्जांपल, जैसे कालीचरण, माय फेवरेट स्टूडेंट, ही इज सेइंग रिलायंस का स्टेक है डेन में 20% से कम, एंड रिलायंस फिर भी उसको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है. सो दैट वे यू कैन चेक इट आउट. इज इट फाइन विथ यू? यू गॉट द मैसेज कि 20% इज नॉट द डिटर्मिनिंग क्राइटेरिया बट प्रॉब्लम रिमेनिंग साइलेंट. अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो 20% से कमती हुआ तो हम लोग इन्फ्लुएंस मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे. अगर 20% से कमती हुआ तो इन्फ्लुएंस नहीं मानेंगे. बट अगर सब में बोला कि 20% से कमती है बट वी सिट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, या बिकॉज ऑफ सम अदर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट वी आर एबल टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द अदर कंपनी ऑल्दो वी डू नॉट सिट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बोल देगा साफ साफ, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लियर कट CFA एग्जाम. दे विल टेल अस that even though we don't have a 20% more stake but we are able to influence the operations of the investee company, तो उस केस में it is not the discussion taking place, it is not investment in financial asset, it goes into investment in associates. उसका accounting treatment अलग है. okay, investments in associate is a strategic investment. उसमें बाजार का जो भाव चेंज हो रहा है ना, उससे मतलब नहीं होगा कि सर शेयर का दाम बढ़ गया गिर गया, अरे स्ट्रैटेजिक है ना. जैसे हम लोग प्लांट में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्लांट में इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में क्या प्लांट का मार्केट वैल्यू देखते हैं क्या? हम लोग जो प्लांट में इन्वेस्ट करते हैं तो उस समय कॉस्ट पे अपने दिखाए, फिर अपने डेप्रिसिएशन करते जाते हैं. वी डोंट शो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लांट, वी डोंट डिस्क्लोज इट इवन नीचे. समझ गए? तो इट्स लाइक अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हो गया. तो एज सुन एज यू गो फाइनेंशियल एसेट के बाहर, इट इज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, उसके बाजार के भाव से कोई मतलब नहीं होगा, एंड देयरफॉर द डिस्कशन. आप समझ पा रहे हैं? मैं ये समझा नहीं पाया कि सर जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है उसका अकाउंटिंग क्या होगा.
आई टेक टाइम टू एक्सप्लेन दैट, बट आप ये तो समझ रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक में जो शेयर का दाम चेंज होगा ना, बी का शेयर का दाम 50, 60, 45, 48, उससे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इट्स अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। बट सर ये वाला जो इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट, उसमें बी का शेयर का दाम 50, 50, 52, 48, 47, our PL and balance sheet will dance. Our PL and balance sheet is going to dance. Is it okay? Did you get the message? Did you get the message? ये very strong message था, ये very strong message था जो मैंने बोला, जो strategic बोलते जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिकॉज बाकी लोग रटेंगे एंड दोज हु आर गेटिंग द स्टफ वो लोग रटेंगे नहीं कि इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट इज नॉट स्ट्रेटेजिक, मार्केट प्राइस मैटर्स. Okay, market price matters. The balance sheet most probably and the PL account are going to dance according to the change in the market price. But in the case of strategic investments, associates, business combination, joint venture, okay, unme the PL and the balance sheet are not going to dance. It's like the investment in plant and machinery. इससे better बोल नहीं सकता हूं. सबको समझ में आ गया? Okay, सबको समझ में आ गया? कुछ लोग आगे का टर्मिनोलॉजी FVTPL, FVOCI लिखना चालू कर दिए हैं, मन में समा नहीं पा रहे हैं. ठीक है ना? दैट्स ओके. तो इन दैट केस जो नया सोच का तरीका है निकुंज, वो सोचो जिससे बैठे जिंदगी भर के लिए, आज से 5 साल बाद भी ओके कॉन्सेप्ट बैठा हुआ रहे. एनीवेज सर समझ में आया. आपने 20% से कमती का बताया, पर आपने ये बोला कि 20% से ज्यादा अगर हुआ, एक मिनट, A has invested 32% in B. A has invested 32% in B. उसके बाद भी does not influence B. Possible or not possible? A has taken a 32% stake in B. उसके बाद also it does not influence B का operations या financials. Is it possible or impossible? A has taken a 32% equity stake in B. उसके बाद भी A does not influence B. Possible or not possible? Possible. तो उस केस में ये भी आएगा इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट, ये भी आएगा इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट. समझ गए? ये भी आएगा इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट. कोई बोल रहा है सर ठीक बोल रहे हैं आप, क्या पता क्लास बी शेयर्स है, क्लास ए शेयर्स में हैवी वोटिंग राइट्स है और क्लास बी शेयर्स वाइज 32% होल्डिंग है, तो वोटिंग राइट्स है नहीं, तो अपने कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे. मे बी ये सब आपका इंटरेस्ट होता है जीपीटी को एक्सप्लोर करना. दिस इज नॉट एन एनालिस्ट टैक का क्लास जहां पे मैं प्रैक्टिकल बहुत बात कर पाऊंगा. आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कितना ज्यादा और एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है ना? ओके, क्लियर सर, समझ में आ गया. आगे बढ़िए, बहुत अच्छे, थैंक यू. तो आगे बढ़ते हैं. अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए हम लोग, बॉन्ड्स में, तो ऑब्वियसली कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का बात ही नहीं आता है. ऑल्दो कभी कभी अपने डिस्कस किए हुए लेवल 1 में जो बॉन्ड होल्डर्स है ना, वो लोग भी बोर्ड सीट पे बैठते हैं. याद है? बॉन्ड होल्डर्स जो है वो लोग भी बोर्ड सीट पे बैठते हैं. उस तरह का कविनेंट्स पर इतने खराब सिचुएशन में कंपनी ने डेट उठाया है ना कि जो बैंक वाला लोन दिया है उसको भी बोर्ड पे बैठा लिया. बट दैट्स एक्सट्रीम सिचुएशन. मैं उस सब चीज को ला रहा नहीं हूँ, बिकॉज देन तो द डिस्कशन इज नेवर एंडिंग. तो बॉन्ड्स में आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्लीज सोचना ही नहीं है. ठीक है, एक्सेप्शंस का बात अलग है. इक्विटी में बात हो गया, तो अपने मान रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट तब होगा जब अपने उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं. ओके, दिखाओ. इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट का मतलब नो इन्फ्लुएंस, नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाके इसका डिस्कशन हो रहा है. नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. बॉन्ड में हमेशा एक्सेप्शंस कुड बी देयर, इक्विटी में मोटा मोटी 20% से कम, नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो उस केस पे स्ट्रैटेजिक का बात नहीं है. तो इसका मतलब सर बाजार का दाम चेंज होगा तो क्या करने वाले आप बताइए. डिस्कस कर रहे हैं हौले हौले, धीरे धीरे. ठीक है ना? ओके, स्क्रीन हटाओ. IFRS 9, दिस इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी आर प्लेइंग विथ. IFRS 9. सर क्या ये ध्यान रखना है? नहीं. नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बार बार बुक में बोला हुआ है. IFRS 9 के अनुसार क्या रूल्स है वो डिस्कशन हो रहा है. पहले IAS 39 था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39, याद नहीं रखना है. अब है IFRS 9. ये जो CA वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उसको एक एक इंड AS का सेक्शन याद होता है ना, तो वो लोग बाजार में बहुत चमकाते रहते हैं. और CFA वाले बेचारे सोचते हैं यार क्या बोल रहा है, हम लोग को तो पता नहीं है. तो इट डजेंट मैटर एट ऑल, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है. ठीक है, यहाँ पे सिंस बार बार बोला हुआ रहेगा इसलिए बोल रहा हूँ. तो आपको तो याद है
कि यूएस गैप और आईएफआरएस में देयर वाज अ कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, यूएस गैप आईएफआरएस में देयर वाज अ कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट। तो पहले यूएस गैप और आईएफआरएस में इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस। मैंने ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 बोले तो सपोज 10 डिफरेंसेस था। उसके बाद ये लोग कुछ प्रोजेक्ट चालू किए कन्वर्जेंस का, और अब जो डिफरेंस है 0 to 10 के स्केल पे बचा है 3। तो 70% ऑफ द डिफरेंसेस हैव बीन डन अवे विथ, 30% डिफरेंस बचा है, थैंक गॉड। तो एज अ सीएफए स्टूडेंट अपने को ज़्यादा बॉदरेशन यूएस गैप आईएफआरएस के डिफरेंस का करना नहीं पड़ेगा, ऑल्दो एलओएस भी उसी पे दिए है। एलओएस भी यही बोला है, बता यूएस गैप आईएफआरएस पे क्या डिफरेंस है इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज एलओएस नंबर बी, कि यूएस गैप आईएफआरएस में क्या डिफरेंस है इस चैप्टर से रिलेटेड। और ये वाला एलओएस आपके हर चैप्टर में है, ठीक है ना, हर चैप्टर में यूएस गैप आईएफआरएस में डिफरेंस। तो वो जो झमेला था ना लेवल 1 में, यार यूएस गैप आईएफआरएस एकदम पता नहीं चल रहा है, ठीक है, वो झमेला लेवल 2 में भी होगा। सो आईएफआरएस 9 पहले था आईएएस 39। आईएएस 39 जो था ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39, दैट यूज्ड टू हैव अ पोर्टफोलियो बकेट अप्रोच। ठीक से सुनो, दैट यूज्ड टू हैव अ पोर्टफोलियो बकेट अप्रोच टू क्लासिफाई बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज, to classify bond investments into 3 categories. What were the 3 categories earlier? One was held to maturity, HTM. The other was available for sale, AFS. The third was held for trading, HFT. Held to maturity, कि हमारा इंटेंशन है हम इस बॉन्ड को बाई किए, इसको लास्ट तक होल्ड करेंगे, इसका कूपन और प्रिंसिपल लेते जाएंगे, हमारा बेचने का मन नहीं है, दैट्स द इंटेंट। हेल्ड टू मेच्योरिटी, HTM। दूसरा अवेलेबल फॉर सेल, हमारा इंटेंशन है हम इस बॉन्ड को होल्ड करेंगे और कूपन अर्न करते जाएंगे, पर अगर अपॉर्चुनिटी दिखा तो बीच में बेच सकते हैं। तो अवेलेबल फॉर सेल में इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज टू होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, होल्ड, वो होल्ड टू मेच्योरिटी था, यहां पे क्या है? होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, इन केस यू अंडरस्टूड। और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, आपको नाम से दिख रहा है, यहां पर्पस है टू ट्रेड, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, वी आर डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ गेन और लॉस, वी डोंट वांट टू कलेक्ट द कूपन इन प्रिंसिपल। तो इन दैट केस पहले 3 था, एक था हेल्ड टू मेच्योरिटी, HTM, एक था अवेलेबल फॉर सेल और एक था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। तो उसके हिसाब से वी यूज टू डू द अकाउंटिंग फॉर इट, अकाउंटिंग उस तरह से किया जाता था। हेल्ड टू मेच्योरिटी का अकाउंटिंग वैसे ही किया जाता था जैसे प्लांट का अकाउंटिंग करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का, ओके। तो प्लांट एंड मशीनरी का फेयर मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, वैसे ही जो अपने हेल्ड टू मेच्योरिटी उसको कॉस्ट पे दिखाते हैं, कॉस्ट, ठीक है, एमोटाइज्ड कॉस्ट, आई विल कम टू द एमोटाइज्ड पार्ट। आप सोचो कॉस्ट पे दिखाते हैं तो उसका जो मार्केट वैल्यू चेंज होता है, उस मार्केट वैल्यू चेंज को इग्नोर करते हैं, इग्नोर, डिस्क्लोजर में जाता है वो अलग बात है। तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ बॉन्ड में, मैंने इन्वेस्ट किया था 102 पे, उसका दाम 105 हो गया, भूल जाओ, 99 हो गया, भूल जाओ, ठीक है। तो उसको 102 पे ही दिखाएंगे, बट सर एमोटाइज्ड कॉस्ट होता है, बाद में आऊँगा उस पर। एक बार कॉस्ट माने वी शो इट एट कॉस्ट, वी शो इट एट कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे प्लांट को कोई बोलेगा डेप्रिशिएटेड कॉस्ट पे दिखाते हैं, अरे यार वो बाद में आएंगे उस पर, एक बार समझो ना, अपने कॉस्ट पे दिखाते हैं, ठीक है। तो उसका जो गेन और अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस क्या होता है? अनरियलाइज्ड गेन और लॉस कि 102 का दाम 105 हो गया, हमने बेचा नहीं, तो अनरियलाइज्ड गेन इज 3, कुछ नहीं करना है। 102 का दाम 99 हो गया, अनरियलाइज्ड लॉस इज 3, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नो एंट्री एट ऑल, ओके। दैट इज द केस ऑफ कॉस्ट। उससे जो कूपन आएगा उसको पीएल में लेना है, जो कूपन आएगा उसको अपने को पीएल में लेना है, कूपन को पीएल में लेना है, ओके। मैं एक बार एमोटाइजेशन पे नहीं जा रहा हूँ, एमोटाइज्ड कॉस्ट नहीं, कॉस्ट बोल रहा हूँ। तो कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है जैसे प्लांट एंड मशीनरी को करते हैं। जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है ना, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लोज, वी आर गोइंग टू ट्रेड ऑन इट। तो उस केस में तुम ट्रेड करने वाले हो तो तुम्हारा कोर ऑपरेशन हो गया एक तरह से, तो आप उसका मार्क टू मार्केट करोगे बैलेंस शीट में, उसका 102 पे बाई किए थे, 105 हो गया तो 105 दिखाओ, 3 का गेन, 102 का 99 हो गया, 3 का लॉस दिखाओ, उसको 99 पे दिखाओ, मार्क टू मार्केट होगा, मार्क टू मार्केट इन द बैलेंस शीट, एंड वो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस पीएल में आएगा, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस पीएल में आएगा। तो इन दैट केस एक था HTM और एक था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, एक था HTM और एक था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग।
दोनों में से किस में पीएल अकाउंट वॉलेटाइल होगा? एक था हेल्ड टू मैच्योरिटी और एक था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। दोनों में से कौन से केस में पीएल अकाउंट ज़्यादा वॉलेटाइल होगा? एक था हेल्ड टिल मैच्योरिटी और एक था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। दोनों में से कौन से केस में पीएल अकाउंट ज़्यादा वॉलेटाइल होगा? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में पीएल अकाउंट ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। पीएल अकाउंट ज़्यादा वॉलेटाइल होगा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में। पीएल अकाउंट विल बी वॉलेटाइल, ठीक है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में पीएल अकाउंट वुड बी वॉलेटाइल। और जो बीच वाला है ना अवेलेबल फॉर सेल, जो बीच वाला है अवेलेबल फॉर सेल, वो अवेलेबल फॉर सेल दोगला है। दोगला है मतलब बैलेंस शीट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। बैलेंस शीट बोलता है सिंस वो आप बेच सकते हैं, यू आर होल्डिंग इट टू कलेक्ट द कूपन बट यू हैव सेड दैट यू कैन सेल इट अगर बहुत बढ़िया दाम दिखा। तो इंटेंशन नहीं है ट्रेड करने का, हमारा इंटेंशन है कैश फ्लो कमाने का, पर हम बेच सकते हैं। सिंस आपका इतना क्लियरली बोला गया कि आप बेच सकते हैं, यू विल हैव टू शो इट एट फेयर मार्केट वैल्यू, तो बैलेंस शीट में मार्क टू मार्केट होगा, पर उसका जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है वो पीएल को बाईपास करेगा, सीधा ओसीआई में आएगा। उसका जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है वो पीएल को बाईपास करेगा, ओसीआई में आएगा। वो पीएल को बाईपास करेगा, ओसीआई में आएगा। तो PUFER पफर, पफर में जो यू होता था दैट वाज अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। दैट वाज अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। अनरियलाइज्ड गेन और लॉस फॉर अवेलेबल फॉर सिक्योरिटी, तो दोगला ट्रीटमेंट है। पीएल को वॉलेटाइल नहीं होने देंगे, पर बैलेंस शीट में फेयर मार्केट वैल्यू दिखाएंगे। कैसे? डायरेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे इक्विटी के अंदर। तो अगर 102 का 105 हो गया तो 3 से एसेट अप और इक्विटी 3 से अप। 102 का 99 हो गया तो 3 से एसेट डाउन, 3 से इक्विटी डाउन। पीएल को इंपैक्ट नहीं आने देंगे। ओके, दैट इज द केस ऑफ अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी दोगला। पीएल का अलग ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट का अलग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो दिस यूज्ड टू हैपन अंडर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39 में ये होता था। अभी भी यही होता है, अभी भी यही होता है, केवल उसको बोलने का तरीका डिफरेंट हो गया एंड दे फोकस ऑन द तरीका बिकॉज उसूल, ठीक है। तो अभी जो है एग्जैक्टली यही होता है, पर इन्होंने इस बार नाम दिया है। पहला वाला एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, जो हेल्ड टू मैच्योरिटी था ना, वो एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। दूसरा वाला FVOCI, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो दोगला था कि उसको फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे बट OCI में ले जाएंगे। और लास्ट वाला जो ट्रेड कर रहे हैं उसको FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू PL अकाउंट, फेयर वैल्यू थ्रू PL अकाउंट। वर्ड ज़्यादा हो गया तो एक बार टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा मेरे को, वरना वर्ड्स पिकअप नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स। एक है कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ये मैंने बोला नहीं था अभी पढ़ाते हुए, पर लिखते समय एक्स्ट्रा जा रहा हूं। और दूसरा है बिजनेस मॉडल टेस्ट। दिस इज द करंट IFRS 9। IFRS 9। सर नंबर याद रखना है क्या? नहीं, नंबर याद नहीं रखना है। एक है कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, एक है कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। दो तो टेस्ट कंडक्ट करना है। और दूसरा है बिजनेस मॉडल टेस्ट। दो टेस्ट है, दो टेस्ट है। कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो है, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, वो ये बोलता है क्या बॉन्ड से contractual cash flows, that is interest plus principal, आने वाला है क्या बॉन्ड से कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज दैट इज इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आने वाला है? क्या बॉन्ड से कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज दैट इज इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आने वाला है? तो मैं बॉन्ड का नाम ले रहा हूं, तुम बताना येस और नो। देयर इज अ 10% कूपन बॉन्ड 5 साल का, 1000 फेस वैल्यू। 10% कूपन बॉन्ड 5 साल का, 1000 फेस वैल्यू। तो डज दिस बॉन्ड सेटिस्फाई दिस टेस्ट? 10% कूपन बॉन्ड 5 साल का, 1000 फेस वैल्यू। डज दिस बॉन्ड सेटिस्फाई द टेस्ट?
10% कूपन बॉन्ड 5 साल का 1000 फेस वैल्यू. डज दिस बॉन्ड सेटिस्फाई द टेस्ट? यस. दूसरा, देर इज अ floating rate bond which will pay 220 basis point over SOFR, which will pay 220 basis point over SOFR. There is a floating rate bond which will pay 220 basis points over SOFR plus principal at the end. There is a floating rate bond which will pay 220 basis points over SOFR plus principal at the end. There is a floating rate bond which will pay 220 basis points over SOFR and last में principal. Answer is yes. आंसर इज यस. ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है. कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब ये नहीं है कि इट शुड बी अ फिक्स्ड अमाउंट. ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है. ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है. दिस इज ऑल्सो पासिंग द टेस्ट. कॉन्ट्रैक्चुअल का ये मतलब नहीं था कि फिक्स्ड अमाउंट आना चाहिए. इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आ रहा है. इंटरेस्ट चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सोफर, वो अलग बात है. बट दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज. कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, येस दे सेटिस्फाई द टेस्ट. कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड भी सेटिस्फाई करता है. कन्वर्टेबल बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं करता है बिकॉज कन्वर्टेबल बॉन्ड में द कैश फ्लो डिपेंड्स अपॉन द शेयर प्राइस दैट इज गोइंग इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन. दैट डज नॉट सेटिस्फाई द टेस्ट. सर, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज, CMBS, RMBS, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, दे डू नॉट सेटिस्फाई. नहीं चलेगा. सर, क्रेडिट लिंक्ड बॉन्ड, कोई ऐसा बॉन्ड है जिसमें CDS राइट किया हुआ है, नहीं चलेगा. They also do not provide contractual cash flows. सर, क्या इतना डीपली ये लोग पूछेगा? आंसर इज नो. क्या इतना डीपली ये लोग पूछेगा? आंसर इज नो. ये सब कुछ नहीं पूछने वाला है. तो जो स्टूडेंट को एग्जाम पे फोकस है, ये सब कुछ नहीं पूछने वाला है. इट इज प्रिज्यूम्ड दैट जो बॉन्ड है उससे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो आने वाला है. तो आपने इतना क्यों बोला? बिकॉज मेरे को पता है जो स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं उनमें से 60% स्टूडेंट को कीड़ा है. कीड़ा, और कीड़ा होना अच्छी बात है. कीड़ा होना अच्छी बात है. Did you understand? Floating rate bond, fixed rate bond, callable bond, puttable bond, these satisfy this cash flow test. But convertible bond does not satisfy. MBS, ABS, जो भी structured bond है, structured bond, they do not satisfy the test. Structured bond, क्योंकि उस पर CDS, PDS है, they do not satisfy the test. ठीक है, they do not satisfy the test. क्या ये एग्जाम में पूछेगा? आंसर इज नो. क्या ये पूछ सकता है? आंसर इज यस. पूछने को दे कैन आस्क एनीथिंग अंडर द स्काई बिकॉज इट्स कवर्ड, बट दे विल नॉट आस्क. तो मैंने 2 मिनट 5 मिनट टाइम वेस्ट किया है. इलॉजिकल क्वेश्चन नयन अग्रवाल पूछते जा रहे हैं. बोला ZCB. ऑब्वियसली आप लोग का क्या जवाब है? ZCB ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है कि नहीं? ZCB ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है कि नहीं? ZCB ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है कि नहीं? यस प्लीज. ZCB ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है कि नहीं? ऑब्वियसली करता है. गरिमा बोल रही है नो. व्हाई नो? जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट नहीं है. आप चीज ही नहीं समझ रहे हो. कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है ना, उसमें कहां दिमाग चल रहा है पता नहीं. ZCB डेफिनेटली इंजॉय करता है ये टेस्ट. जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट नहीं है कोई बात थोड़ी हुआ. ZCB डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस टेस्ट. तो जो भी सिंपल बॉन्ड्स होते हैं जिनमें मोटा मोटी हिसाब किताब क्लियर है, जिसमें कोई कंटिंजेंसी नहीं है, पर उसमें कॉलेबल पुटेबल भी आता है. Callable, puttable, ZCB, coupon bearing bond, they all satisfy this test. Structured bond do not satisfy this test. Convertible bond do not satisfy this test. सर, क्या ये एग्जाम में इस तरह पूछेगा? नहीं पूछेगा. नहीं पूछेगा. सर, क्या स्क्वाइजर में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है. सर, क्या कोर में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है. कोर में भी नहीं लिखा हुआ है, स्क्वाइजर में भी नहीं लिखा हुआ है. हंस गधेचा, हाउ ZCB? तो जवाब है हाउ नॉट ZCB. ZCB में आपको 1000 मिलने वाला है 5 साल बाद. इजंट इट कंट्रैक्चुअल? ZCB में आपको 1000 मिलने वाला है 5 साल बाद. इजंट इट कंट्रैक्चुअल? यस इट इज कंट्रैक्चुअल. मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इलॉजिकली. ठीक है ना? तो ये था पहला टेस्ट. दूसरा टेस्ट, बिजनेस मॉडल टेस्ट. बिजनेस मॉडल टेस्ट इज बेसिकली फर्म का इंटेंशन क्या है. फर्म का इंटेंशन क्या है? फर्म ए का इंटेंशन क्या है? नंबर 1, होल्ड टू कलेक्ट. नंबर 2, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल.
नंबर 3 होल्ड, टू ट्रेड, दैट इज टू सेल। 3 तो इंटेंशन हो रखा है। हम ये बॉन्ड बाई कर रहे हैं कैश फ्लोज जो है ना उनको लेने के लिए। हम ये बॉन्ड बाई कर रहे हैं कैश फ्लोज को लेने के लिए, बट हम चाहे तो बीच में बेच सकते हैं। हम ये बॉन्ड बाई कर रखे हैं खेलो इंडिया खेलो करने के लिए। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? बॉन्ड बाय बॉन्ड बताना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बकेट अप्रोच नहीं चलेगा जो IAS 39 में था। आपको एक एक बॉन्ड का क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज द बिजनेस मॉडल, व्हाई आर यू होल्डिंग द बॉन्ड, द फर्म हैज टू स्पेसिफाई। ओके, तीनों वर्ड्स क्लियर है, देयर इज नो क्वेश्चन कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यू हैव टू स्पेसिफाई। इट इज बट ऑब्वियस दैट अगर ये टेस्ट सेटिस्फाइड है, अगर ये टेस्ट सेटिस्फाइड है, लेफ्ट वाला टेस्ट सेटिस्फाइड है, लेफ्ट सेटिस्फाइड +1, तो आपको इसको दिखाना है एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। सर एमोर्टाइज्ड कॉस्ट समझ में नहीं आया, वो बता दूंगा, डोंट वरी, अभी आप कॉस्ट सोचो। लेफ्ट सेटिस्फाइड, यस सर कंट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है, +2, तो आपको दिखाना है इसको FVOCI। FVOCI का फुल फॉर्म इज ओके, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेफ्ट वाला सेटिस्फाइड, लेफ्ट वाला सेटिस्फाइड प्लस हमको तो ट्रेडिंग करना है खेलो इंडिया खेलो, तो FVTPL, FVTPL, FVTPL। लेफ्ट मतलब यू आर सेइंग कैश फ्लो, यस आई एम सेइंग कैश फ्लो। सब मेरा नाम लेके आप बोल दीजिए ना, मेरे को अच्छा लगेगा, दिव्यांश अग्रवाल, ठीक है ना। वो बोले लेफ्ट का मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कैश फ्लो टेस्ट, यस। 2 तो टेस्ट था, कैश फ्लो टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट, तो लेफ्ट का मतलब बोलना चाह रहा था कैश फ्लो टेस्ट, कैश फ्लो टेस्ट। सेटिस्फाइड +1 हुआ तो इंटेंशन पहला हुआ तो एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, कैश फ्लो टेस्ट हुआ +2 हुआ तो FVOCI, कैश फ्लो टेस्ट सेटिस्फाइड +3 हुआ तो FVTPL। FVTPL इन दोनों केस में आपको समझ में आ रहा होगा, इन दोनों केस में बैलेंस शीट में मार्क टू मार्केट होगा, बैलेंस शीट में मार्क टू मार्केट होगा, इन दोनों केस में बैलेंस शीट में मार्क टू मार्केट होगा। पर ये वाले केस में FVOCI में UG/UL OCI में जाएगा, इस वाले में UG/UL इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अनरियलाइज्ड गेन ऑब्लिक अनरियलाइज्ड लॉस, अनरियलाइज्ड गेन ऑब्लिक अनरियलाइज्ड लॉस वहाँ पे OCI में जाएगा, PL स्टेबल रहेगा। FVTPL में फेयर वैल्यू थ्रू PL अकाउंट, क्या नाम दिया है, कोई बंदा बोल ही नहीं सकता है कि सर आई डोंट अंडरस्टैंड FVTPL। कोई भी स्टूडेंट का अगर ये हुआ ना कि मेरे को FVTPL में क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, उसी समय आपको इंडिकेशन है कि पढ़ाई बंद कर दो, उठ जाओ, ठीक है, सांस ले लो, योग मुद्रा, ठीक है, मुंह धो के आ जाओ। बिकॉज क्या करना है वो नाम में लिखा, फेयर वैल्यू, यानी बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू दिखाना है थ्रू PL अकाउंट, यानी जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है PL में आएगा। तो देन व्हाट इज टू बी डन इन अकाउंटिंग इज रिटन इन द नेम। Okay, what is to be done in accounting is written in the name. You cannot say that I don't understand the accounting part of it. And amortized cost में fair value नहीं आएगा, amortized cost में fair value नहीं आएगा, बाजार का दाम से कोई मतलब नहीं है। We will show it at amortized cost. Amortized cost का मतलब क्या होता है सर? Amortized cost का मतलब बहुत सारे लोग खोल खोल के जानते हैं। Amortized cost के लिए I think I'll write a single word, पुल टू पार इफेक्ट। इन केस ये वर्ड आपको पता है, आई यूज टू यूज दिस टर्म इन CFA लेवल 1, बट इंस्टीट्यूट ने यूज कर रखा था कांस्टेंट यील्ड प्राइस ट्रेजेक्टरी, कांस्टेंट यील्ड प्राइस ट्रेजेक्टरी। तो बाई चांस इफ देयर इज अ स्टूडेंट ट्रेजेक्टरी जो मेरे से लेवल 1 नहीं लिए थे, ठीक है, और जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया था या कहीं और से लेवल 1 लिए थे, तो उनको याद आ रहा होगा ये सेकंड वाला टर्म सुना हुआ,
पुल टू पार इफेक्ट और कांस्टेंट यील्ड प्राइस ट्रेजेक्टरी, ध्यान दो, दिमाग पे जोर लगाओ। बॉन्ड चैप्टर में पुल टू पार इफेक्ट या कांस्टेंट यील्ड प्राइस ट्रेजेक्टरी, ओके, याद करो, ध्यान आएगा। मैं तो समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। बट इन केस आपको याद आ रहा हो तो बहुत बढ़िया। यस, किसको किसको याद आ रहा है? यश बोल रहा है इंक्रीज इन प्राइस एज टाइम पासेस। यश पूरी तरह से राइट नहीं लिखा है। कौशिक शाह राइट बोला है सर, डिस्काउंट बॉन्ड भी पार की तरफ जाएगा, प्रीमियम बॉन्ड भी पार की तरफ जाएगा, करेक्ट। तो डिस्काउंट बॉन्ड है तो पार की तरफ जाएगा मतलब बढ़ेगा, और प्रीमियम बॉन्ड है पार की तरफ जाएगा मतलब गिरेगा। मूविंग टुवर्ड्स फेस वैल्यू एज वी अप्रोच मैच्योरिटी, assuming yield does not change, assuming yield does not change, the value will move towards par. Yes, correct है। तो इन दैट केस डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल। फेस वैल्यू 1000, मेच्योरिटी 5 years, प्राइस 922, कूपन रेट 8%, पेएबल एनुअली। होप आप कॉपी कर रहे हैं। फेस वैल्यू 1000, 5 साल का बॉन्ड, 922 प्राइस है, कूपन रेट 8%, पेएबल एनुअली 80 80 80 80, लास्ट ईयर 80 प्लस 1000, 80 80 80 80, लास्ट में 80 प्लस 1000, ठीक है ना। तो इन दैट केस इस बॉन्ड को शुरू में 922 पे दिखाए बैलेंस शीट में। इट्स लाइक जो लोग अकाउंट्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एसेट में बैलेंस शीट में बॉन्ड आ गया 922 का, बैंक अकाउंट कम हो गया 922 से। उसके बाद जाके फर्स्ट ईयर बीता, तो फर्स्ट ईयर बीता तो उस केस में कूपन 80 मिला, वो पीएल अकाउंट में क्रेडिट का फीलिंग आया। बट बॉन्ड का वाईटीएम क्या था शुरू में? बॉन्ड का वाईटीएम क्या था? यस प्लीज, बॉन्ड का वाईटीएम क्या था? ऑब्वियस है 8% से ज़्यादा था। बॉन्ड का वाईटीएम 8% से ज़्यादा था, बिकॉज 922 में बॉन्ड को बाई कर रहे हैं। निकुंज ने बोला 10.06%, आई बाय वाई 10.0608%, जो भी है अप्रॉक्स, ये वाईटीएम था। अनिमेश नंदी पहली बार बोला, बिकॉज पहली बार कैलकुलेशन हुआ, बाकी सारा कैलकुलेशन नहीं चल रहा था। अनिमेश नंदी को मजा उतना नहीं आ रहा था। ओके, पहली बार मोदी सरकार आई, अनिमेश नंदी 10.06% वाईटीएम, ओके 10.06% ये वाईटीएम। अब आप n इक्वल टू 4 कर दो और प्राइस बताओ, n इक्वल टू 4 कर दो, प्राइस बताओ, n इक्वल टू 3 कर दो, प्राइस बताओ, n इक्वल टू 2 कर दो, प्राइस बताओ, n इक्वल टू 1 कर दो, प्राइस बताओ, n इक्वल टू 0 पे प्राइस मत बताओ। यस प्लीज। तो आया 934.76, n इक्वल टू 3 किए तो प्राइस क्या आया? n इक्वल टू 3 किए तो प्राइस क्या आया? एक साल जब बीता ना, पहले 5 साल बाकी था, जब एक साल बीता तो 934.76 आया, करेक्ट है क्या ये? फिर आया 948.81, 948.81, फिर आया 948.81 के बाद n इक्वल टू 2 किए तो क्या आया? n इक्वल टू 2 किए तो क्या आया? फाड़ फूड के अनिमेश नंदी जोश में आ गए। 964.26, 964.26, 964.26, फिर आया 9, फिर क्या आया? 964.26, एक साल बाकी है तो क्या आया? 981.27, लास्ट में 1000, 80 को हटा के, 80 को हटा के लास्ट में 1000, लास्ट पे क्या कैलकुलेशन करेंगे? 1000। तो इन दैट केस ये जो बॉन्ड है ना, ये कैरी होगा। अगर कॉस्ट होता तो 922 पे कैरी होता, बट रूल क्या है? इट इज कैरीड एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, तो ये इस दाम पे कैरी होगा। यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज कैरीड एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। जैसे प्लांट एंड मशीनरी इज कैरीड एट डेप्रिशिएटेड कॉस्ट ना, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वैसे दिस इज कैरीड एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो जो 922 से 934 है, 922 से 934 है, यानी कि 12.76, दैट इज
12.76, that is amortization of discount. तो इन दैट केस इनकम स्टेटमेंट में हमारा जो इनकम है दैट इज 80 प्लस 12.76 इक्वल टू 92.76 ईयर वन बॉन्ड से हम लोग फर्स्ट ईयर कमा रहे हैं 80 का कूपन प्लस 12.76 पुल टू पार. ओके, 80 प्लस 12.76. बिकॉज अगर चीज समझो ठीक से तो बॉन्ड तुमने बाई किया, समझो चीज समझन ठीक से, तुमने बॉन्ड किया 922 पे और बॉन्ड तुमको 80 80 80 80 और 1000 देगा. समझो 922 पे बॉन्ड बाई किया और बॉन्ड तुमको 80 इंटू 5 प्लस 1000 देगा. कितना देगा टोटल? बॉन्ड तुमको 80 इंटू 5 प्लस 1000 देगा, 1400 देगा. बिकॉज आप तो होल्ड टू कलेक्ट मॉडल है, तो आपको 922 दिए और आपको 80 इंटू 5 प्लस 1000 1400 मिलेगा. तो इन दैट केस क्या कमाओगे आप? क्या कमाओगे? सर मैं कमाऊंगा 478 फ्रॉम दिस बॉन्ड. तो 478 तो पीएल में जाना चाहिए, 478 तो पीएल में जाना चाहिए. बट अगर आप पीएल में केवल 80 80 80 दिखाओगे तब तो केवल 400 ही जाएगा. अगर आप पीएल में 80 80 80 दिखाओगे तो 400 जाएगा. तो 78 कहां गया? तो 78 को 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ओके, 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट करें 78 को. तो 78 का जो फर्स्ट ईयर का हिस्सा है वो 12.76 है, वो 12.76 है. सेकेंड ईयर का हिस्सा क्या है बताइए? सेकेंड ईयर का हिस्सा क्या है? 948.81 माइनस 934.76. 948.81 माइनस 934.76. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनीबडी सेइंग दैट साहब बहुत फटाफट बोल रहे थे. फटाफट नहीं, हम खोल के बोल रहे हैं, खोल के. सिंस खोल के बोल रहे हैं तो ज्यादा मैटर कवर्ड है, पर मैटर ऐसा है जो आप आराम से खुद से बैठ के क्लास के बाद फिर से वर्किंग कर सकते हैं. 14.05 तो जाहिर है 14.05 प्लस 80 आपका पीएल में जाएगा 94.05 पीएल में. ओके, उसके बाद 964.26 माइनस 948.81, 964.26 प्लस 948.81, 964.26 plus 948.81, 964.26 plus 948.81 is 15.45. 15.45 plus 80 95.45 पीएल में जाने वाला है. 95.45 पीएल में जाने वाला है. 95.45. 981.26 माइनस 964.26. 981.26 माइनस 964.26. 981.26 माइनस 964.26. तो मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं खोल खोल के पढ़ा रहा हूं. ठीक है, जिसमें खुद का मेहनत चाहिए घर पे पकड़ने के लिए. तो 97 पीएल में आएगा, 97 पीएल में आएगा लास्ट वाला. 981.26 से 1000 यानी 18.74 प्लस 80 98.74 पीएल में आएगा. 98.74 पीएल में आएगा. ओके, 98.74 पीएल में आएगा. ठीक है, सो दिस इज amortized कॉस्ट. द बॉन्ड विल नॉट बी शोन एट 922, will be shown at 934, 948, 964, 981, 1000. समझ गए? बॉन्ड इन दामों पे दिखाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ amortized कॉस्ट. कोई भी बंदा amortized कॉस्ट को खुल के समझ ही नहीं सकता है अनलेस एंटिल एक बार ऐसा एक्सरसाइज करे, एक बार ये काम करे. एक बार ये करना पड़ेगा आपको. रफ पेज लेके आप प्रीमियम बॉन्ड लेना. सर ने ये लिया, मैं क्या लूंगा? मैं घर पे लूंगा 1000 5 साल और ये ले लूंगा मैं 1075 प्राइस, कूपन रेट 8%. फिर मैं YTM निकालूंगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर मैं सेम चीज करूंगा. करो, कोई इशू नहीं है. तो वंस यू हैव टू डू टू लेट योर ब्रेन सेल्स गेट एक्सरसाइज्ड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ग्रेट गिफ्ट फॉर अस, बट ह्यूमन एनर्जी हैज टू गो. ओके, इन टर्म्स ऑफ बीइंग सेल्फ क्लियर अबाउट इट. amortized कॉस्ट. सर क्या इस तरह से ये लोग पूछने वाले हैं? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, बिकॉज ये लोग नंबर क्रंचर्स नहीं है, ना ही ये हम लोग को नंबर क्रंचर्स बनाने वाले हैं. जो बंदा इसी को अपना जीवन मानता है वो बंदा पीछे का काम करेगा, बैक ऑफिस का. ओके, वो क्लाइंट फेसिंग जॉब नहीं करेगा. तो ये जानते हैं कंसेप्चुअली, पर दिस इज नॉट आवर जॉब कि मेरे को मजा आता है ये करने में. तेरे को मजा आता तो पीछे का काम करेगा. amortized कॉस्ट क्लियर हो गया.
तो लार्जर पिक्चर ये शीट बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया, तो इन दैट केस ये हो गया बॉन्ड का डिस्कशन कि सर जब ए कंपनी बी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो उस केस में उसका अकाउंटिंग कैसे करेगा, क्या एमोटाइज्ड कॉस्ट करेगा या FVOCI करेगा या FVTPL करेगा, डिपेंड करता है दो टेस्ट पे, कैश फ्लो टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट। कैश फ्लो टेस्ट मतलब इज द बॉन्ड गोइंग टू प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज लाइक कूपन एंड प्रिंसिपल, ओके। एग्जाम में येस और नो है, वो सब है ही नहीं जो मैंने बोला, स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट वगैरह, फिर भी आई स्पोक एवरीथिंग। तो जो फिक्स कूपन बॉन्ड था, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड था, जीरो कूपन बॉन्ड था, कॉलेबल बॉन्ड था, पोर्टेबल बॉन्ड, दे सेटिस्फाई द कैश फ्लो टेस्ट, ठीक है। द MBS ABS ऑफ द वर्ल्ड, द कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड, द क्रेडिट लिंक्ड नोट जिनमें CDS होता है, दे डोंट सेटिस्फाई दिस टेस्ट, द ट्रांचेस एंड ऑल डोंट सेटिस्फाई दिस टेस्ट। उनमें क्या होगा, दोज हु डोंट सेटिस्फाई दिस टेस्ट अभी तक बोला ही नहीं है। उनमें क्या होगा, जिसपे लेफ्ट वाला सेटिस्फाइड नहीं है वो बोला ही नहीं है, बिकॉज वो पूछता ही नहीं है, फिर भी बोलूंगा, याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो जो सेटिस्फाई कर दिया कैश फ्लो टेस्ट, उसके बाद व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द फर्म, इज द इंटेंशन टू होल्ड टू कलेक्ट, कि हमको तो कैश फ्लो लेना है, तो उस केस में एमोटाइज्ड कॉस्ट, इज इट टू होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, मेरे को कैश फ्लो कलेक्ट करना है पर बीच में बेच सकते हैं, तो दोगला FVOCI, बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू और डायरेक्ट टू इक्विटी एडजस्टमेंट, PL अकाउंट में नहीं आएगा अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। और अगर उसको वी आर होल्डिंग इट टू ट्रेड टू सेल, खेलो इंडिया खेलो, द वर्ड इज गुड बिलीव मी, खेलो इंडिया खेलो से याद आएगा आपको, तो उस केस में FVTPL, बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू और PL में अनरियलाइज्ड गेन और लॉस, द PL विल डांस अकॉर्डिंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, द PL विल बिकम एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, ठीक है। तो यू अंडरस्टूड। सर अगर कैश फ्लो टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, बाई चांस एग्जाम में जो आप बोल रहे हैं वो आ गया तो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, बाई चांस एग्जाम में आ गया तो कि स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उस केस में तो कौन सा मेथड लगाएंगे, उस केस में FVTPL, बिकॉज FVTPL इज अ टाइट मेथड, FVTPL इज अ टाइट मेथड, टाइट बिकॉज वो फोर्स कर रहा है तुम PL में दिखाओ, तुम ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट बाई कर रहे हैं, तो भाई होगा नहीं, तुम चल PL में दिखा, यू हैव टू शो इट इन PL, FVTPL होगा। यू कैन राइट दैट डाउन, मैं मिस कर गया था वहां पे, इफ द कैश फ्लो टेस्ट नॉट सेटिस्फाइड, if the cash flow test not satisfied, 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 dot dot dot, FVTPL, 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 unless FVTPL, unless the firm can prove, unless the firm can prove that FVOCI is justified, unless the firm can prove that FVOCI is justified, unless the firm can prove that FVOCI is justified, FVOCI is justified, but amortized cost not allowed, but amortized cost not allowed, but amortized cost not allowed, amortized cost not allowed। क्यों ये लोग amortized cost के अगेंस्ट में है, बट एमोटाइज कॉस्ट नॉट, बिकॉज एमोटाइज कॉस्ट में जो मार्केट वैल्यू है ना बॉन्ड का, उसको आप छुपा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, खतरा क्या है सारे मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स को, कि कंपनी सच छुपा रहा है, दैट इज द खतरा। एमोटाइज्ड कॉस्ट सच छुपाता है, बिकॉज वो कॉस्ट पे दिखाता है, क्या पता बॉन्ड का दाम 50 रुपया हो गया है, 40 रुपया हो गया है, वो दिखा रहा है 100, ठीक है। ऑफ कोर्स परमानेंट इंपेयरमेंट का भी क्लॉज होता है अकाउंटिंग में, यहां पे मैं बोलूंगा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, बट दैट केस मोटा मोटी बात कर रहे हैं, आप सच छुपा रहे हैं एमोटाइज कॉस्ट में। FVOCI में आप बैलेंस शीट में सच दिखा रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट सच छुपा रहे हैं। FVTPL में आप दोनों जगह सच दिखा रहे हैं। ये लिख लीजिए, जो मेरा स्टूडेंट है वो डेफिनेटली समझेगा। एमोटाइज कॉस्ट में आप सच छुपा रहे हैं, दिस इज द टोन, नॉट रिटन एनीवेयर बट दिस विल गिव यू अ फील। एमोटाइज कॉस्ट वाले मेथड में सच छुपाया जा रहा है, बैलेंस शीट से भी PL से भी सच छुपाया जा रहा है। बिलीव मी, दिस इज द क्रक्स। बोलते बोलते निकला, बोलते बोलते, ठीक है। तो एमोटाइज कॉस्ट में सच छुपाया जा रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हुआ ना अगर, तो भाई सच नहीं छुपाएंगे, दिखा साला,
ओके तुमको दिखाना पड़ेगा फेयर वैल्यू, सॉरी दिखा साला बोल दिया, डोंट माइंड इट, मैंने वो टोन में आ गया। उसके बाद अगर आप FVOCI कर रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट से सच छुपा रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट में सच छुपा रहे हैं। FVOCI में इनकम स्टेटमेंट में सच छुपा रहे हैं, जो नंगा नाच चल रहा है बैलेंस शीट में उसको इनकम स्टेटमेंट में छुपा रहे हैं। सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज, बट बिलीव मी मैंने देखा है ये लैंग्वेजेस इंडियन मासेस को समझ में आता है। ओके जो मैंने बोला ना, जो नंगा नाच बैलेंस शीट में चल रहा है उसको PL में छुपा रहे हैं, ये घुसा होगा लोगों के, ओके लाइक 90 डिग्री। और FVTPL में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, खुलेआम, नो छुपाना छुपी, ओके नो छुपा छुपी FVTPL में, ओके FVTPL में नो छुपा छुपी, FVTPL में देयर इज नो छुपा छुपी। इज इट ओके? थोड़ा थक गया, पूछ लेता हूं भाई क्या हाल है, समझ में आ रहा है क्या? पूछ लेता हूं क्या हाल है भाई, समझ में आ रहा है क्या? गरिमा, कुशाग्र, यश, आज किसका किसका फर्स्ट क्लास है? आज किसका किसका फर्स्ट क्लास है? जिन्होंने इस बार लेवल 1 क्लियर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, थोड़ा राइट लेफ्ट बात कर ले। जिन्होंने आज लेवल 1 क्लियर किया, आज नहीं मतलब इस बार लेवल 1 क्लियर किया है, ठीक है, तो उन लोग को बहुत बहुत इनविटेशन फॉर दिस क्लास। और आपको जोश देने के लिए, आपको जोश देने के लिए बता दूं, आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए विद इन द नेक्स्ट 15-20 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ, एक महीने, मतलब आज अपने 23 मार्च खड़े हैं तो 23 अप्रैल तक जो लोग जोश में हैं, ओके, जो लोग भगवान को बोले थे L1 का रिजल्ट आते समय, जब L1 का रिजल्ट निकल रहा था ना, और ऐसे प्रे कर रहे थे, भगवान प्लीज 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 प्लीज, ओके याद है, प्रे कर रहे थे और भगवान ने सुन लिया, डोंट गिव हिम धोखा, बोल रहे होंगे भगवान प्लीज मैं लेवल 2 में ऐसा मेहनत करूंगा ना, भगवान प्लीज प्लीज, जो बोल रहे थे वो वाला प्लीज याद दिला रहा हूं। तो उन लोग एक महीने में क्या करें, सुन लो ठीक से। जो लोग अभी लाइव क्लास करें उन लोग के लिए बोल रहा हूं, बिकॉज देन तो टाइम विल पास। वो लोग को नंबर वन वो लोग को, ये चैप्टर तो स्टार्ट हुआ है, अभी कोई बातें नहीं, आराम से करो, हौले हौले मजा आएगा। आप करेंसी, किसका, इकोनॉमिक्स में करेंसी एक्सचेंज रेट का 6 क्लास हुआ है, करेंसी एक्सचेंज रेट का 6 क्लास हुआ है, जिसमें 4 क्लास छोटा छोटा क्लास था, मोटा मोटी 45 मिनट्स 1 आवर का एक एक क्लास, 5वां क्लास बड़ा था 2 घंटे का, 6ठा क्लास बड़ा था 1.5 घंटे का। वो 6 क्लास कर लो। कब तक कर ले सर? मेरे ख्याल से इस संडे तक हो जाना चाहिए, इस संडे तक 6 क्लास कर लो। और करेंसी को हमें ज्वाइन कर लो, करेंसी को जो लाइव चल रहा है करेंसी को हमें ज्वाइन कर लो, ठीक है, इस संडे तक करके। सर उसके बाद आप QM में चले जाओ। QM में मल्टीपल रिग्रेशन, QM में मल्टीपल रिग्रेशन 3 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मल्टीपल रिग्रेशन, उसका आपको बहुत सारा क्लासेस देखेगा, बट सब छोटा छोटा क्लास है, स्मॉल क्लासेस था, कोई 35 मिनट्स 45 मिनट्स का भी क्लासेस था। मल्टीपल रिग्रेशन चैप्टर सल्टाओ, ओके, इस वीक के बाद, इस वीक तक करेंसी सल्टा ली है, इस वीक के बाद 1.5 हफ्ते में 1.5 वीक्स में मल्टीपल रिग्रेशन सल्टाओ और हमें टाइम सीरीज में पकड़ लो। जो नेक्स्ट चैप्टर है टाइम सीरीज, उसमें हमारा गला पकड़ लो, हमारे साथ आ जाओ, ठीक है, QM में भी हमारे साथ आ जाओ। आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा तब कि चलो सर के साथ FSA भी चल रहा है, सर के साथ इकोनॉमिक्स भी चल रहा है और सर के साथ QM भी चल रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर हमारा हो चुका है इकोनॉमिक ग्रोथ, वो कर लो, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ कर लो तो एक चैप्टर और हो गया आपका। और उसके अलावा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में हेज फंड हमने किया था, वो हेज फंड कर लो। दिस इज योर टारगेट फॉर 1 मंथ, दिस इज योर टारगेट फॉर 1 मंथ विदाउट एनी डाइवर्जन, दिस इज व्हाट यू शुड डू इन 1 मंथ, ठीक है। मैं वापस से रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने बोला है 1 घंटे 10 मिनट के बाद आप फिर से टॉगल रिपीट कर सकते हो क्लास को सुन के कि सर ने क्या बोला था, ठीक है। तो ये तरीके से मूव करेंगे तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज यू नो अ सर्टेन टारगेट यू नीड टू रीच बाय 1 मंथ। कुछ लोग हैं जो लोग नवंबर में पास हो गए थे और जब रिजल्ट निकला था क्या खुश हुए थे, पर उस खुशी के मारे अभी तक पढ़ाई चालू नहीं किए थे लेवल 2 का, ओके, पढ़ाई चालू नहीं किए थे लेवल 2 का, पथ भ्रष्ट हो गए थे।
वो लोग के लिए भी सेम है सजेशन, बिकॉज ये लोग जो अभी निकले हैं जोश में, ये लोग आगे टान देंगे, ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, और आप जो नवंबर में निकले थे पीछे रह जाओगे। सर मजाक कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? 100% होता है, चेप चेप के होता है। ओके, सिंस ही इज कनेक्टेड टू बी क्या नाम है उसका, सर्वेश, तो सर्वेश के साथ ऐसा हो रहा था 15 दिन पहले। उसके फादर को मैं जानता हूं, तो बिकॉज ऑफ विच उसके फादर को बोला मैं, तो इन दैट केस सर्वेश लाइन पे आ गया है। ठीक है, सर्वेश डजंट माइंड कि मैं उसका नाम ले रहा हूं यहाँ पे, आई हैव द लिबर्टी, उतना मेरे को अथॉरिटी, लिबर्टी, फ्रीडम है। ठीक है, और भी जन ऐसे होंगे, अब लाइन पे आ जाओ। ठीक है, खासकर अगर नवंबर में एग्जाम देना है तो, मई में देना है तो तब थोड़ा सा हौले हौले बाकी चीज़ और एंजॉय करो जो चल रहा है लाइफ का, कमिटमेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है ना। ओह गॉड, तो बॉन्ड में इस तरीके से अकाउंटिंग होता है। दिस इज द वे इन विच वी डू अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड्स। ठीक है, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूं अपने, कल इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं सेम टाइम, विल कंटिन्यू द क्लास सेम टाइम टुमारो। ठीक है, 8 PM पे कंटिन्यू करते हैं। आप जो चाहे रीडिंग कर सकते हैं, नहीं चाहे रीडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट द क्लास वॉज डन वेल, ऑडियो समरी शेयर कर दिया जाएगा आपसे। ठीक है, विल मीट यू टुमारो 8 PM फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम क्लास। कल करेंसी होगा क्या, ये नयन अग्रवाल पूछ रहा है, कल करेंसी होगा क्या? मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा मेरा टाइम स्केड्यूल। ओके, अदरवाइज वी लाइक टू पुश इन आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे या करेंसी का क्लास, बिकॉज वो क्या चल रहा था, CIRP UIRP ये सब चल रहा था। हो सकता है आधा घंटा 1 घंटे का पुश कर देंगे, आई टेल यू। ठीक है, बट इसका क्लास तो कल होगा ही। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।